Good morning, students. Our today's topic is dispersion of a white light, or we can say dispersion through a prism. To understand this topic, we have to take a triangular prism. एक triangular prism लेंगे हम लोग, ठीक है, in which this is your incident ray, ठीक है, the ray which is coming to the prism. This is your refracted ray, ठीक है, this is your incident ray, this is your refracted ray. The perpendicular drawn to the side AB of the prism is known as normal. In the similar way, the perpendicular drawn to the side AC is again known as normal. These two normal are adjoining to each other at point N. So when the light is incident on the prism, it slightly deviates from its original path. This phenomena is known as refraction. And again, when the light goes to another medium, this is rare, this is dense, and this is rare. Now again, when light enters in the rare medium, it goes away from the normal. Okay, so this is your incident ray, this is your refracted ray, and this is your emergent ray. When these two normals are joined, in the same way, when incident ray is produced further and the emergent ray is produced further, they are meeting at point O, and the angle between these two rays is known as del. This angle is known as angle of deviation. So this is angle of incidence, this is angle of refraction, this is also known as angle of refraction, and this is also known as angle of incident or angle of emergence. Okay, now we need to discuss dispersion of a white light. Now what is dispersion? When a white light is incident on a transparent medium like a prism, ठीक है, it slightly deviates from its original path. During this, the light get split into its respective 7 colors, that is Vibgyor, Vibgyor, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Okay, this phenomena is known as dispersion of light. Okay, now we are going to study this. Even though all colors of the visible spectrum travel with the same speed in vacuum, okay, we know that all these colors are travel with the same speed. Okay, the speed of the colors of the visible spectrum varies when they pass through a transparent medium. अगर यहाँ पर ये चल रही है, मतलब 7 कलर्स की स्पीड है, तो सेम रहेगी, लेकिन जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाकर रिफ्रैक्ट होंगी तो उनकी स्पीड वेरी करेगी. जैसे कि अगर वाटर में होगी तो उनकी स्पीड अलग होगी, अगर हम लोग ग्लास से रिफ्रैक्ट कराएंगे तो उसकी स्पीड अलग होगी. ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज हाउ मच दे इंक्रीज, how much we can say affect the speed of light from vacuum to the medium. This is known as this is known as refractive index of the material. Is that clear? Now we came to the new topic, that is how refraction affects in the nature. Here it is written वेरिएशन इन द साइज ऑफ द सन. ठीक है, क्या ऐसा होता है कि हमें सन कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, फिर वापस बड़ा दिखता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं डस्क और डॉन की और नून की, ठीक है, तो हमें सन का साइज छोटा और बड़ा दिखता है. अब इसका रीज़न क्या है? एट डस्क और डॉन मतलब सनसेट और सनराइज. ठीक है, द सन अपीयर्स टू बी लार्जर देन एट नून. हमें जो सन है वो नून से बड़ा दिखता है. वी नो दैट. ठीक है, दिस इज बिकॉज व्हेन द सन इज नियर द हॉरिजॉन. तो अगर हम लोग अपने अर्थ के हॉरिजॉन की, इस हॉरिजॉन की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस कम है और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है. तो अर्थ सन जब हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो हॉरिजॉन के पास है, द लाइट रेज कमिंग
from the sun have to pass through the layers of the earth air of increasing density। ठीक है, यहाँ से जो लेयर है वो इंक्रीजिंग डेंसिटी से पास होगी। ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो सन का साइज हमें बड़ा दिखता है। इन द सेम वे अगर सन नून में है, ड्यू टू दिस कंटिन्यू, ठीक है, एट द नून द सन अपेयर्स टू बी स्मॉलर। हमें पता है नून में छोटा दिखता है। ये क्यों होता है, क्योंकि सन रेज जो है वो नॉर्मली फॉल करती है। अब नॉर्मली फॉल कर रही है मतलब उसमें बेंडिंग, नॉर्मली मतलब सीधा फॉल करेंगी, सीधा फॉल करेंगी मतलब उसमें रिफ्रैक्शन या तो कम होगा या होगा ही नहीं, तो सन हमें उस वक्त छोटा दिखा देता है। इज दिस क्लियर? दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द रिफ्रैक्शन। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज स्कैटरिंग। हमें एक टॉपिक समझ में आया, डिस्पर्जन क्या होता है या फिर रिफ्रैक्शन से हमें साइज छोटे बड़े कैसे दिखते हैं। नाउ द अनदर टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग is generally a physical process whereby some forms of radiation such as light or moving particle, for example, are forced to deviate from their straight trajectory। जैसे लाइट हमारे पास सीधी आ रही है, अगर कोई पार्टिकल उसके सामने आ गया और उसे फोर्स करता है कि वो अपने पाथ से चेंज हो जाए, मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री से या उसके पाथ से अलग हो जाए, बाय वन और मोर लोकलाइज नॉन यूनिफॉर्मिलिटीज इन द मीडियम थ्रू इट्स पासेस। जैसे हमने बोल दिया कि सन से हमारे पास रेज आ रही है और यहाँ पर एक बादल बना हुआ है, ये बादल फोर्स करेगा कि ये लाइट जो है वो डिफरेंट, क्योंकि ये हमारे पास एक इरेगुलर सरफेस है, अगर इरेगुलर सरफेस पे लाइट गिरेगी तो वो डिफरेंट एंगल से अलग अलग पाथ में रिफ्लेक्ट होगी। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन भी होगा। The large number of molecule present in the earth atmosphere, the molecule scattered light। अब हमें पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर्ड करेंगे। ठीक है, एज द सनलाइट पासेस थ्रू द एयर, जैसे ही सनलाइट एयर से पासेस होगी तो जो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ थी, हमने अभी भी देखा विबग्योर देखा, तो जो हमारे पास शॉर्टर ब्लू लाइट है वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, एंड द अदर कलर लाइट बीइंग आर अनअफेक्टेड। तो क्या होगा, जो ब्लू लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट बैठ जाती है और बाकी के कलर्स जो है इससे अनइफेक्टेड रह जाते हैं। ठीक है, ब्लू अनअफेक्टेड रिफ्लेक्ट, इसीलिए ऐसा होता है कि अर्थ का कलर हमें जब हम उसे ऊपर से देखते हैं या हम लोग स्पेस में जाते हैं तो अर्थ इज अपीयर्स टू बी ब्लू। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेनबो की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि हाउ रेनबो इज़ फॉर्म्ड इन द नेचर, और वहाँ पर हमारे पास किस तरह से रिफ्रैक्शन हमें इफेक्ट करता है, इस फिनोमेना को हमको स्टडी करना है। ऑल सेट स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।